ओके गाइस, सो वेलकम टू टुडेज़ वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक जो हमारे फ्रेंड इथोपिया गए थे, उन्होंने उनका पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है। पहले ही मैं डिस्क्लेमर कह दूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, इट्स ऑन यू। आपको जानना हो तो आप सब रिसर्च करके जाइए। उन्होंने अच्छा है कि उन्होंने पूरा उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपकी भी कोई फ्रेंड दूसरी थर्ड कंट्री के वाया गए हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिए। वी विल शेयर देयर एक्सपीरियंस हियर। बाकी दूसरी एक हेल्थ कनाडा की ओर से अपडेट आई है, वैक्सीनेशन की ओर से, वो देखेंगे। एयर इंडिया की एक अपडेट आई है, वो देखेंगे। फिर VFS अहमदाबाद के जो एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया था कि उनके जो मैनेजर है उनसे उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा था वो देखेंगे। IRCC का क्या रिस्पॉन्स आया है इस बायोमेट्रिक्स के रिलेटेड, वो देखेंगे। व्हेन वी विल सी कि एतिहाद एयरवेज अभी फंक्शन कर रही है या नहीं, वो भी देखेंगे। एंड देन इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ ऑफ कोविड, वो तो देखना ही देखना पड़ेगा आप सबके लिए यार, हम सब के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं पूरा पढ़ूंगा। उन्होंने चैट में लिखा है, उन्होंने जर्नी टू कनाडा वाया थर्ड कंट्री। वी हैड फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू इथोपिया वाया दोहा। इन बॉम्बे वी गिव RT-PCR एंड स्टेड इन होटल फॉर 2 days. Next day we got reports. We moved to airport at night 11 p.m. and had a flight at 4 a.m. Mumbai immigration asked for university enrollment letter, visa and passport. Okay. फिर आफ्टर दिस वी वेर अलाउड टू बोर्ड एंड रीच दोहा. वी हैड अ layover for 12 hours at Doha. Here no questions. Okay. Baggages were sent from Bombay to Ethiopia, so no baggage waiting in Doha. Then we reached Ethiopia where the immigration officer asked for visa, passport and RT-PCR from Mumbai. Prior to 72 hours, he asked me what they are doing. I told him I am a student at Canadian University. He asked me, then you are using Ethiopia for transit, and I said yes I am. He stamped passport and we then moved to Hotel Meadow at 2 a.m. with a cab provided by hotel. Then at 10 a.m. we went to Udesen Diagnostic Center to get corona test done. It cost around $29. Get the exchange into beer done. There is a bank at Woodson campus where he exchanged US dollar in beer as the lab asked the money in beer, BIR जो उनकी करेंसी है वो. यू कैन गेट एक्सचेंज डन एट एयरपोर्ट और होटल. सो ये सभी बात, जब भी कोई भी बच्चा यार प्लीज़ जा रहा हो तो ये सभी बात कंसिडर कीजिए। इन्होंने इतना टाइप करके मेहनत की है हमारे साथ शेयर करने के लिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी यार जाते हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कोई गया हो और उनका एक्सपीरियंस हो और वो हमें अगर मिले मतलब जानने को, तो इट हेल्प्स अ लॉट. Then the same day during night we called the lab and asked for lab result. We were told you are negative. This was just after some 12 hours. Next day we went to lab to collect the report, and then from lab uh, there we headed to airport. Then at airport we reached at 11:30 a.m. for the flight of 11 p.m. The officer first checked document of work permit holder first. Then he came to student and asked for latest enrollment letter of current semester, visa, passport. Send document via mobile to Canadian Embassy. I got the approval from embassy and was provided boarding pass at 3 p.m. There were other students who did not have latest enrollment of current semester to wait. They waited till 8 p.m. for another officer in the new shift. The officer cleared all the people and there was no one who was denied to board. Note, please get your latest enrollment letter from college. Some colleges might have it in the student portal. Other colleges might provide via email, so it might take time to get later. Please pre-arrange the letter. So ये बहुत बड़ी बात है। जब भी आप अगर ये दोहा या तो आप इथोपिया के थ्रू जाने वाले हो तो आप प्लीज़ अपना एनरोलमेंट लेटर रखिए, और कोई भी जाने वाला हो तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए. देन आफ्टर मल्टीपल चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक RT-PCR, 3-day होटल बुकिंग, passport arrived and received, we are allowed to board. In Canadian immigration they ask for COVID test, visa, passport, admission offer letter, fee receipt, 3-day होटल क्वारंटाइन एंड 11-day होटल क्वारंटाइन. और उनको जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि उनका लेटेस्ट एनरोलमेंट लेटर ऑफ करंट सेमेस्टर. फॉर एग्जांपल आपने डेफर कराया हो तो वो जो है वो पुराना हो जाएगा, आपको नया लेना पड़ेगा. एंड एक नया एनरोलमेंट लेटर मतलब कि आपका जो एनरोल्ड हुए हो उसका प्रूफ उनको चाहिए. ऑफ़र लेटर और एनरोलमेंट लेटर हो, वो दोनों आपको लेटेस्ट चाहिए. एनरोलमेंट लेटर का मतलब यही है कि भाई आप ऑनलाइन क्लासेस अभी पढ़ रहे हो एंड इट्स एसेंशियल कि आपको ट्रैवल करना पड़े. सो इट्स गुड कि आप ऐसा ले लो. फिर एडमिशन लेटर, ओके. देन पोर्ट ऑफ एंट्री, अराइव कैन, 3-day होटल क्वारंटाइन, कॉलेज फी रिसिप्ट, RT-PCR इन 11 days स्टे. क्रेडिट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ मैगिल हु वेंट थ्रू दिस. ओके, थैंक यू यार जिन्होंने भी ये शेयर किया है.
बहुत मेहनत लगती है इतना टाइप करके भी इतना शेयर करने को, वो तो पहुंच गए उनको क्या, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में सोचा है, तो आप भी दूसरों के बारे में सोचिए एंड शेयर दिस वीडियो टू था नंबर्स ऑफ ग्रुप्स एंड शेयर दिस वीडियो टू मेरे लिए नहीं कह रहा मैं यार, लेकिन किसको हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ये। और अगर ये ना देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा पेस्ट कर दूंगा, वीडियो ना देखनी हो तो आप सिर्फ पढ़ लेना, मुझे कोई नहीं है इसके रिलेटेड। फिर अभी हम आते हैं हेल्थ कैनेडा के जो ट्वीट आया था, वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कोविड-19 वैक्सीन्स आर हाईली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग इलनेस बट वी आर स्टिल लर्निंग इफ वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स कैन कैरी एंड स्प्रेड द वायरस टू अदर्स। सो इसका ट्वीट का रिलेशन मैं वैक्सीनेशन पासपोर्ट से ले रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक हेल्थ कैनेडा जो है वही डिसाइड करेगी कि भाई वैक्सीनेशन पासपोर्ट लाना है या नहीं, वो सजेस्ट करेंगी गवर्नमेंट को कि भाई वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव है। सो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि कोवैक्सीन लगाए, कोविशील्ड लगाए, क्या लगाए। अगर आपको जाने में टाइम है देन गो फॉर कोविशील्ड आई सजेस्ट। और अगर आप ट्रैवल ही करने वाले हो तो आप कोवैक्सीन लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। वैसे तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी कनाडा में अप्रूव नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन इज़ मस्ट यार। कोवैक्सीन भी उसकी भी इफेक्टिवनेस है, वो लोग ये देखेंगे, वो लोग ये नहीं देखेंगे कि भाई आपने कोविशील्ड लगाई है या कोवैक्सीन, बाकी दोनों में से एक भी वैक्सीन हमारी उधर नहीं वैलिड है, सो डोंट वरी यार। फिर एयर इंडिया ने ट्वीट किया था कल, ड्यू टू कंटिन्यू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 अक्रॉस द ग्लोब ब्रिंगिंग अनसर्टेनिटी इन ट्रैवल प्लान्स, एयर इंडिया इज ऑफरिंग वेरियस वीवर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू पैसेंजर्स हु आर होल्डिंग टिकट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। सो अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल की टिकट एयर इंडिया की बुक है तो आपको वीवर भी मिलेगा, आपको फ्री में वो लोग ट्रांसफ़र भी कर देंगे, आपकी रीशेड्यूल तो हो ही गई होगी, आपको रिफंड चाहे तो भी आप ले सकते हो। फिर एक मैंने जो आपको VFS अहमदाबाद की अपडेट आई थी, ये मेरे साथ एक फ्रेंड ने शेयर किया, आई एम नॉट श्योर कि इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन जो मैंने अपना प्रेडिक्शन है वो इससे ट्रू होता है कि आई रिसेंटली टॉक टू द मैनेजर ऑफ MD ऑफ VFS अहमदाबाद, ही टोल्ड मी दैट वेन एवर द केसेज वुड बी मिनिमम इन इंडिया दे विल ओपन ऑल द सेंटर ऑफ इंडिया एंड दैट वुड हैपन हाईली इन द जून। जैसा मैंने आपको कहा था जून में ओपन करना ही पड़ेगा उनको। He also told me that September intake students don't need to worry about anything. Every student would be in Canada by time because they have much time left yet. Yeah. और उनको रिस्पॉन्स बाय IRCC क्या आया था, डियर स्टूडेंट ऑन रिव्यूइंग द हेल्थ क्राइसिस हैपनिंग इन इंडिया एंड द इनएबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू सबमिट द बायोमेट्रिक्स ड्यू टू वीजा एप्लीकेशन सेंटर क्लोजर इन इंडिया, IRCC has decided to process applications without biometrics. The update will be available in the official website soon. However, the PPRs, if approved, will only be sent once IRCC receives the biometric. Students applied after May 15 can still expect the result on the month of August as IRCC is processing application quickly. So don't worry, अगर आपने फाइल लगा दी है अपनी और लगाने भी वाले हो तो भी कोई इशू नहीं है, उसके रिलेटेड तो मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपने लगा दी हो तो आपको इशू नहीं है। सो नो इश्यूज़। अगर आपने अपनी एक कॉल आ गया था दूसरे कॉल पे। सो अगर आपने लगा दी हो तो देयर इज़ नो इश्यू, आप बिना चिंता कीजिए आप जा सकते हो, आपका सब कुछ हो जाएगा, ये प्रूफ है। अब देखते हैं कि इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है या नहीं। ये तो किसी बच्चे ने ट्वीट किया था, वो मेरे शायद उन्होंने शेयर किया, लेकिन ऑफिशियल अपडेट अगर होगी ऐसे कि भाई बायोमेट्रिक्स के बिना वो लोग चेक करेंगे आपकी फ़ाइल, तो देखेंगे आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखें, आपको PPR विदाउट बायोमेट्रिक्स और मेडिकल आ ही नहीं सकती, ये पहले क्लियर कर दीजिए, ठीक है। फिर एतिहाद का बहुत सारे लोगों को डाउट था कि क्या वो भी एक्सटेंड हुआ है, तो हियर इज़ द योर आंसर। माई फ्लाइट इज़ ऑन June 2. Could you please confirm whether flight is operating or not, because I have to make planning in advance like COVID test and travel to another city to board flight. As per the new Emirates has cancelled flights till 14th June. Kindly let your status know as fast as possible. Hello, I can understand here. We are working closely with the relevant authorities and we will let you know whether the restriction is lifted or extended as soon as we can. सो अभी तक तो एमिरेट्स ने ही एक्सटेंड किया है, एतिहाद का कोई भी अपडेट इससे पता चलता है कि आया नहीं है, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा आई विल शेयर विथ यू, सो स्टे ट्यून। और अभी हम आते हैं हमारे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ पे, और वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कल 24 मई को इंडिया में कितने केसेस आए थे, वो आप देख सकते हो। जस्ट 1,95,000, जो कि पहले से बहुत कम आ रहा है। अभी देयर वॉज स्टेज दैट वी वर एट 4 लाख से 3 लाख आए, 3 लाख से 2 लाख आए, और अभी 2 लाख से भी नीचे गए। मुझे अंदाज़ा था कि इस मंथ के एंड तक जाएंगे 2 लाख से नीचे, लेकिन अभी ही चले गए। सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अगर हम 1,50,000 या तो 1 लाख के अराउंड आ जाए तो डेफिनेटली खुलेगा VFS नेक्स्ट मंथ, और मुझे हाईली लगता है कि सभी सर्विसेज नेक्स्ट मंथ खोल जानी चाहिए। कनाडा में भी कल बहुत कम केसेस, ओनली 2,384 केसेस आए थे, वो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। सो यही थी आज की अपडेट्स।
सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू टुडेज अपडेट देन ड्रॉप अ कमेंट बिलो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल एंड थैंक यू आप सबका बहुत बहुत यार। हम अभी 3K कम्युनिटी हमारी पूरी हुई है, सो अभी हमें और आगे जाना है। सो सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि ये इथोपिया का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप उनको वीडियो ना देखने हो तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, आप कॉपी पेस्ट करके शेयर कीजिए डिस्क्रिप्शन को, कोई इश्यू नहीं है मेरे को। सो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं एंड लाइक द वीडियो इफ इट वाज हेल्पफुल एंड मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। I'ma be the one they choose, though. You could be the one they lose, ho. Way too busy and snooze, bro. I'ma be the one to rise up in it. Never gonna fall, I fight till I get it. Always stand tall, got pride, I'm grinning. I don't really think I'll ever find my limit. And I know that they all wanna hate me, but they see me on the climb.